Okay, good सर क्या morning. Now पाछा एशियन lecture. पेंट Good morning, Jai Somnath. Now lecture has been going to record it. Good morning. Now, as Hemal sir said to me, he have completed chapter number 2. Yes or no? Sorry, chapter number 1. Yes. Okay. Yes, sir. Okay. Now we will discuss about the chapter number 2, and also we start from today's. And the chapter 2 is very simple, very easy. I think you know the 11th chapter number, I think gravitation. In gravitation, you know something about the gravitational potential energy. Yes or no? Yes, sir. Okay. If you remember the gravitational potential energy and if you know the equation, then you now learn the chapter number 2 in chapter standard 12 is very, very easy. If you can remember. If not, then today you have to see that old textbook of 11th standard and visualize all the old chapters, and you can see that chapter number 12th in sorry, chapter number 2nd in 12th is similar, but the physical quantity is different. Now let's say one more thing. You know something about the what happen if the spring is attached with one end and another end one block, and if you pull or you will be push, what happen? You know, Transformation. repeat time question. Suppose at the one end, let's say share a white screen with you. Is it visible or not? Tell me. Okay, so is it visible? White screen? यस सर Yes, Yes, sir. sir. Okay, good. Suppose one rigid fixed support and one string with attached one spring and one block is there on a surface and there is no more friction. So ideally frictionless surface is there. Okay. Now if you apply some force to here or you can push to here, two possibilities are there. So what happened? Tell me. So first answer is if we pull on the right hand side, so the spring length will be increased. Yes or no? Yes. Yes, sir. And block will be here in first condition. Okay, in first condition. Now in second condition, if you pull the block, so in second condition, if you pull or push towards the center or towards the rigid support, the spring will be distressed. Okay, like this in second condition. Yes or no? Yes, sir. Okay, now my question is that what will be happen of our work? हमने जो वर्क किया दोनों केसेस में कि चलो फर्स्ट में हमने थोड़ा पुश किया, सेकंड में थोड़ा पुल पुश किया, तो दोनों में हमने कुछ वर्क किया, वो वर्क कहाँ गया? Spring. Spring. Yes, it will be stored in a spring in form of potential energy. Yes or no? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Ready? In form of potential energy, our work will be stored. Clear? Yes or no? Yes. Yes, sir. पक्का ना? Okay. Now, after that, if we release, block को हम release कर देते हैं, then what happen? It will be comes to
its original position. Yes or no? दोनों केसेस में हमने Yes, sir. पुश किया और पुल किया और बाद में हम इस ब्लॉक को फ्री कर देते हैं, तो फिर ए ब्लॉक ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। उस टाइम पे हमने जो वर्क किया था वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हुआ था, वो पोटेंशियल एनर्जी विल बी रिड्यूस एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड फिर से वो अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। Yes or no? And that potential energy, you know, that is 1/2 k x squares if the displacement is x. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. है ना, इतनी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होती है। एंड द टोटल एनर्जी इज कंजर्व। टोटल एनर्जी कंजर्व होती है। चलो फर्स्ट केस में आपको पता चल गया मैं क्या बताना चाहता हूं कि हम कुछ भी वर्क करते हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी या फिर एनर्जी के रूप फॉर्म में वहां पे स्टोर होता है, और एनर्जी का फिर से काइनेटिक एनर्जी में या फिर कोई भी एनर्जी में फिर थोड़ा कुछ रिड्यूस होने के बाद कुछ ना कुछ ओरिजिनल पोजीशन पे आने का ट्राई होता है। चलो इतना क्लियर। फर्स्ट एग्जांपल से ये आप ऑलरेडी 11th में स्टडी कर गए हो। यस और नो? 11th में बेटा स्टडी કર્યું છે કે નહીં તમે? हाँ सर। हाँ सर। तो इसलिए मैं ये सब बैकग्राउंड कर रहा हूँ ताकि सेकंड चैप्टर में 12th में आपको सब कुछ पता चले कि मैं जो भी फंडामेंटली आपको बता रहा हूँ वो फंडामेंटली वो याद रखेगा। ये फॉर्मूला याद रहे ना रहे उससे कुछ मतलब नहीं, लेकिन ये कुछ वर्क पोटेंशियल एनर्जी कैसे स्टोर होता है ये सब फंडामेंटली याद रखना, तो 12th का टॉपिक तुरंत ही आपको पता चल जाएगा। चलो ये फर्स्ट। अब मैं नेक्स्ट और एक एग्जांपल बता रहा हूं। चलो ग्रेविटेशनल फोर्स की फॉर्मूला क्या है? Gm1m2 by r square. Gravitational force Fg, let's say Fg, what is it? G M1 M2 m1 m2 by r डिवाइड square. बाय आर स्क्वायर। यानी कि आपके पास दो मासेस है, सपोज मास m1 एंड अनदर मास m2 and the distance between two particle is, let's say, r, then the force will be given by this equation. Okay, clear? है ना? Yes, sir. Okay. Now what happen if we divide by mass? Fg is divided by mass. Suppose mass m1 or m2. What happen? So you will be get here like this, G m2 by r square, and here you will obtain G m1 by r square. है ना? Yes, sir. हम दोनों में यहाँ पे देखो इस इक्वेशन को डिवाइड करते हैं तो हमें ऐसा कुछ मिला। आपको पता है इस फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या बोलते थे? या फिर इन शॉर्ट आप ऐसे भी लिख सकते हो, Gm by r square। Yes or no? हेलो हेलो। हाँ सर। Yes, sir. इस फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या बोलते थे? आपको कुछ याद है या फिर नहीं याद? Sir, small g. स्मॉल जी, थोड़ा कुछ और कुछ याद करो। चलो एक एक आपके लिए क्वेश्चन रहा, ठीक है?
अब दूसरा पॉइंट से सोचो, इसका आंसर आपको मुझे देना है, अभी मैं नहीं दे रहा हूं। आप अभी इसी फिजिकल क्वांटिटी को Fg को डिस्टेंस से डिवाइड करो, देन यू विल बी ऑब्टेन Gm1 m2 by R. What is this physical quantity? चलो थोड़ा कुछ याद करो। फिर से क्वेश्चन में पता चला आपको सभी को कि आप फोर्स को डिस्टेंस से डिवाइड करो, यानी कि मैंने दोनों से डिवाइड किया तो आर स्क्वायर है ना, या फिर डिवाइड की जगह चलो आप मल्टीप्लाई करो आर से, तो आर से मल्टीप्लाई करो तो आर कैंसिल आउट, तो आपको ये मिलेगा। चलो आपको डिवाइड नहीं करना है, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या मिलेगा आपको, यही। तो इस फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे? चलो ये क्या है? हेलो, आप सुन रहे हो? सर Yes, sir. ये क्या है? Gravitational force. फोर्स। ये क्या है? Displacement. रेडियस डिस्टेंस, यानी कि फोर्स इंटू डिस्टेंस, उसको आप क्या बोलते हो? वर्क। ये सुनो, वर्क इज इक्वल टू व्हाट? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। पक्का ना? यानी कि लेफ्ट हैंड साइड देखो हमें वर्क मिला, वर्क यानी कि हमें एनर्जी हम बोल सकते हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। तो लेफ्ट हैंड साइड देखो हमें क्या कुछ मिला, वर्क और एनर्जी। तो ये क्या हो सकता है? ये क्या हो सकता है? एनर्जी या वर्क हो सकता है ना। हाँ सर। हाँ सर। लेफ्ट हैंड साइड जो है तो राइट हैंड साइड वही सेम होना चाहिए, और इसी को हम बोलते थे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इफ यू नो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि आप उसको V या फिर U से डिनोटेट करते थे। V ऑफ R इज इक्वल टू G m स्क्वेयर बाय R। यस और नो? Yes, sir. और यदि आप यूनिट मास ले रहे हो तो आप मास को भी डिवाइड करो तो सिर्फ आपके पास Gm बाय R बचता। तो आपको ये सब फंडामेंटली याद होना चाहिए, और ये फर्स्ट में आपको जो मिलता था आप उसको जी बोलते थे, इफ यू नो। यस और नो? स्मॉल जी बोलते थे आप इसको। चलो ये छोड़ो, आपको ये सेकंड पोर्शन अभी इंपॉर्टेंट है। चलो आपको ये पता चल गया सब कुछ, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so let's I back to my screen. Okay, यानी कि आपको बेटा ये पता चल गया कि कोई भी फील्ड हो, अभी हमने ग्रेविटेशनल फील्ड लिया, तो ग्रेविटेशनल फील्ड में हम कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट करते हैं, कुछ ना कुछ चेंज करते हैं, है ना। यानी कि वन डिस्टेंस से अनदर डिस्टेंस आप चेंज होते हो तो आपकी एनर्जी में कुछ चेंज हो रहा है, यानी कि कुछ वर्क हो रहा है। ये एक कॉमन बात रही दोनों में। दो एग्जांपल दिए मैंने, फर्स्ट स्प्रिंग में, तो स्प्रिंग के लिए एनर्जी थी, वो थी पोटेंशियल एनर्जी की, यानी कि उसकी ऐसी कुछ स्ट्रक्चर है स्प्रिंग का, तो उसमें कुछ चेंज हो रहा है तो हमें कुछ एनर्जी कुछ वर्क मिल रहा था। सेकंड एग्जांपल मैंने दिया, सेकंड एग्जांपल मैंने ग्रेविटेशनल फील्ड का दिया, यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड जहां पे हो उस ग्रेविटेशनल फील्ड में कुछ डिस्टेंस में चेंज हो, यानी कि आप ग्रेविटेशनल फील्ड में एक जगह से दूसरी जगह पे कुछ मास ले जा रहे हो, कुछ ला रहे हो, तो फिर से कुछ वर्क हो रहा है, कुछ उसकी एनर्जी में चेंज हो रहा है, ये फिक्स है। तो यही कंसेप्ट को, सेम कंसेप्ट को यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड में, यानी कि
कूलम्बियन फोर्स यानी कि चार्ज रखा है, वहां पे यदि हम कोई चार्ज का कुछ डिस्टेंस में चेंज करें तो क्या होता है, तो क्या होना चाहिए, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। यानी कि इसी फिजिकल क्वांटिटी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के नाम से जानेंगे। यानी कि सेकंड चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड सेकंड टॉपिक इज कैपेसिटेंस। यू नो द फैन एंड द फैन यदि आपने ओपन किया हो या फिर फैन के ऊपर आपने देखा तो एक छोटा सा एक व्हाइट कलर का या फिर ब्लैक कलर का एक छोटा सा आपने शेप देखा होगा, यस और नो? Yes, sir. फैन में या फिर इलेक्ट्रिक मोटर उसमें भी आपने देखा होगा ऐसा कुछ। Potato. हाँ, हम टेटा बोलते हैं उसके, चलो टेटा है ना, कुछ ना कुछ हमने, व्हाट इज इट, वो आपको पता होना चाहिए वो क्या होता है। दैट इज द कैपेसिटर। कैपेसिटर है ना, हमारे घर में जो पानी की टैंक होती है उसका वर्क क्या होता है, मेन वर्क, कि स्टोर द वाटर, यस और नो? Yes, sir. वाटर टैंक है, उसका वर्क क्या होता है कि चलो अर्ली मॉर्निंग आ रही है तो हम वाटर टैंक में पानी स्टोर कर रहे हैं, और जब भी हमें जितना भी पानी चाहिए तो हम टैप ओपन करके उनमें से निकालते हैं। यानी कि एक ऐसा स्ट्रक्चर को जो कुछ एनर्जी वगैरह कुछ स्टोर कर सके। यानी कि यदि हम चार्ज स्टोर करना चाहते हैं, है ना, कुछ ना कुछ समय के लिए चार्ज स्टोर करना चाहिए या फिर कुछ एक्यूमुलेट करना चाहते हैं हम, तो ऐसी कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस है तो उसको हम बोलेंगे कैपेसिटर। और इसी फिजिकल क्वांटिटी को हम कैपेसिटेंस से मेजर करेंगे। तो इस चैप्टर में हम मोस्ट प्रोबेबली इस दोनों टॉपिक पे पढ़ाई करने वाले हैं। यानी कि और सेकंड चैप्टर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। चलो सब कुछ पता चल गया आपको कि इस चैप्टर क्या है, हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। यानी कि यदि आपको 11th का थोड़ा कुछ भी बेसिक पता हो तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, है ना? Yes, sir. यस सर और यदि आप, मैंने अभी जो कुछ एक्सप्लेन किया है, यदि आपको और कुछ दिक्कत है तो फिर 11th की टेक्स्ट बुक ओपन करने के बाद थोड़ा कुछ उसमें नजर डाल लीजिएगा कि चलो ये क्या सर ने कुछ क्या कहा था। ग्रेविटेशनल चैप्टर देख लिए, उसका अगला वर्क एनर्जी वाला चैप्टर ये भी देख लिए, उसमें फॉर्मूला देख लो, थोड़ा कुछ रीड कर लो, उसमें ग्राफ था ग्राफ भी देख लो, है ना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कैसे ग्राफ मिलता था, उसकी फॉर्मूला वगैरह सब कुछ, वो कुछ सब कुछ थोड़ा कुछ देख लो। तो इस चैप्टर में आपको ज्यादा पता चलेगा कि इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं। ओनली फिजिकल क्वांटिटी चेंज होने वाली है। वहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी, यहाँ तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज जिसके नाम से हम उसको जानेंगे कि वोल्टेज क्या है, क्या होता है, ये भी हम जानेंगे। यानी कि आप 10th में पढ़ चुके थे कि इलेक्ट्रिक sir. करंट होता है, और इलेक्ट्रिक करंट के साथ रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस होता है तो वोल्टेज होता है। तो आपने फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा है अबाउट द चार्ज। अब इस चैप्टर में आप थोड़ा कुछ वोल्टेज वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 में करंट, रेजिस्टेंस, वोल्टेज, डिवाइसेस, डीसी डिवाइसेस, ये सब कुछ आप पढ़ने वाले हो। यानी कि एक सीक्वेंस है। फर्स्ट चैप्टर में आप थोड़ा कुछ चार्ज के बारे में पढ़ गए, चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे 11th में ग्रेविटेशनल फील्ड था, ऐसे यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज हमने सारी की सारी देखी, ये सब कुछ हमने देखा। और उससे आगे हम जाते हैं, है ना। फर्स्ट चैप्टर में आपने गोस या फिर गाउस, उसका फील्ड कैसे होता है, और वायर से और गाउस फील्ड के अकॉर्डिंग तो कैसे में क्या चेंज होता है, फ्लक्स क्या मिलता है, ये सब कुछ हमने पढ़ा था। अब सेकंड चैप्टर में उससे हम आगे जाने वाले हैं, यानी कि सीक्वेंस में। तो फर्स्ट चैप्टर में यदि आपको फंडामेंटली थोड़ा कुछ नहीं पता है तो आप एक बार देख लेना, और पॉसिबल है तो इस चैप्टर का
मैं रिकॉर्डिंग करने के बाद यूट्यूब में रख ही दूंगा, यानी कि आपको जब भी रिवाइज करना हो, जब भी देखना हो, तो आप दिन पे भी देख सकते हो। कुछ फिर से समझना हो तो पॉसिबल हो तो मैं ऐसा करने वाला हूँ, मोस्ट प्रोबेबल, इसलिए अभी मैंने रिकॉर्डिंग तो शुरू ही रखा है। चलो, अब इतना में जो कुछ भी मैंने एक्सप्लेन किया है, इसमें किसी को कुछ डाउट हो, कुछ पता ना चला हो तो मुझे पूछ लीजिए कि बेटा, आप पूछ सकते हो, कुछ डाउट, कुछ ना पता चला हो वगैरह कुछ हो तो। और आपको एक बेहतर है कि क्लासरूम में तो स्टिक पड़ती थी, है ना, कुछ मार सर। प्रसादी मिलती थी, और यहाँ तो कुछ मिलने वाला है नहीं, तो आप ये शांति। इजीली पूछ सकते हो, कुछ બેટા पूछना हो બેટા तो। થઈ જાય હે સર આમાં બેટા બેટા થઈ જાય ક્લાસરૂમમાં બેટા નતું આવતું ठीक है, मैं मेरा मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, ठीक है ना। मुझे डॉक्टर ने बोला कि हर घंटे का रिपोर्ट लिखने के बाद मुझे सेंड करना है। टेम्परेचर भी अभी मैं मेजर कर रहा हूँ, और ये दोनों पानी भी। पानी मेजर कर रहे हैं? कहीं नहीं सर। कितना दिख रहा है ऑक्सीजन? 66 99 66 होता तो मैं यहाँ नहीं होता, आईसीयू रूम में होता, ठीक है। વેન્ટિલેટર બે દાડા સર ફરી ના દેખાય. चलो, ये तो ठीक है। કેટલું હોવું જોઈએ સર? 95 प्लस 95 प्लस। देखो, मैंने पूरा रिपोर्ट लिखा है, मुझे डॉक्टर को सेंड करना होता है। जब दिखते हो, दिखता है नहीं दिखता, आई डोंट नो। દિખતા वो पीछे सर स्क्रीन મૂકી है इसकी. हाँ, चलो, चार સર એકવાર સાચું તો ઘર બતાવો યાર. नहीं है, नहीं, मैं रास्ते રાસ્તે पे मैं रास्ते सर पे जा यार. रहा हूँ। चलो, मैंने एक क्वेश्चन पूछा आपको, यदि आपको कुछ डाउट वगैरह कुछ हो तो मुझे पूछिएगा। ના ના સર કઈ डाउट नहीं. घर का डाउट था वो स्वीट ने पूछ लिया. ओके, चलो, तो कोई बात नहीं। कभी घर पे आना, चाय नाश्ता करना। चाय नहीं, चाय तो हम पीते नहीं, तो फिर स्प्राइट वगैरह कुछ पियेंगे, हाँ और थोड़ा नाश्ते sanitize पानी। करा दो સરે ઘરે वो लाइन જઈએ તો નહીં મારો ને क्या? સાહેબ એ સરે સર वो लाइन मारશો નહીં ને અમને नहीं नहीं, हमारे यहाँ पे रिवाज है अतिथि देवो भव। इसलिए पहले देखो, ऐसा पहले है हम. घर के आगे लिखता था अतिथि देवो भव, फिर अभी लिखते बीवर डॉग, डॉग से डर के रहेगा, ठीक है। तो अब तो हम घर पे अतिथि देवो भी हमने लिखा है। કોણ ડોગ સર? नहीं नहीं, अभी लिखा होता है घर के आगे, कुत्ते से समझदार बचे हम रहेगा, भी क्या. क्योंकि हम जानते कि घर में कौन रहते हैं, तो फिर उससे बचने के रहना है। लेकिन हमने ऐसे स्टिकर लगाए नहीं, अतिथि देवो भव ही लिखा है। Yeah. चलो, ठीक है, तो તમારે फिर ઘર જોવું પડશે સર મારે. नहीं नहीं, उसमें कुछ जो ब्रिक से बना हुआ, ब्रिक सीमेंट से ही बना हुआ है। आई थिंक आपको टेक्स्ट बुक दिखती होगी। હા સર, તમે તો પેલું નતા કહેતા બધી કંપનીઓ તમારી, એટલે અમને એમ કે સોનાનું બન્યું. सॉरी, સર પેલી રોયલ્સ રોયલ્સ ને જેગોર બધી કંપનીઓ આપણે જ નહીં તમારી એટલે હા वो ને तो નહીં? हमने रेंट पे दी हुई है ना सबको। એટલે Rent કે पे. સોનાનું બન્યું હશે એવું કહે છે ઘર. नहीं 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 नहीं, कच्चा ही कौन मकान हम कह रखते हैं, सकते? पक्का मकान नहीं रखते, जरूरत नहीं है ना। चलो, तो लेक्चर में अभी तो हम जस्ट नंबरिंग कर रहे हैं। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अब तक जो हमने किया वो तो बैकग्राउंड था, लेकिन चैप्टर तो अभी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। आपको कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कि ऐसे ही? સર દેખાય કમ્પ્લીટ દેખાય છે સર नहीं पता चला, ना दिखे तो मुझे बोल देना। चलो, थोड़ा कुछ इंट्रोडक्शन हम आज पढ़ाई करते हैं। फर्स्ट डे है। चलो, कौन रीड करेगा? है कोई? कोई नहीं? चलो, तो फिर मैं तो पढ़ाई करूंगा ही। सी इन चैप्टर नंबर 6 एंड 8, जैसे भी हमने जो भी हमने अभी इंट्रोडक्शन दिया वही यहाँ पे इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है। जो भी मैंने 11th किया हुआ, चैप्टर नंबर 6 एंड 8
the notion of potential energy was introduced in 11th, है ना 11th में. Now when an external force does work in talking a body from a point to the another against a force like spring force or gravitational force, that work gets stored as potential energy of the body. चलो इस सेंटेंस में पता चल गया सभी को. जैसे भी कोई फील्ड में यदि हम कुछ वर्क कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तब उसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होने वाली है जो हमने वर्क किया था वो, जैसे भी हमने एक्सप्लेन अभी किया था. नाउ व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव, स्प्रिंग में या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स में, द बॉडी मूव्स एंड गेनिंग काइनेटिक एनर्जी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस होती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी. एंड लॉसिंग एन इक्वल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जितने भी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी उतनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, यानी कि टोटल एनर्जी शुड बी कंजर्व. ओके, एंड द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इज thus कंजर्व. एंड इसी फील्ड को हम कंजर्वेटिव फील्ड बोलते हैं. एमसीक्यू आ सकता है, कंजर्वेटिव फील्ड में क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व होती है. एमसीक्यू याद रखने का है, लिख देना आप टेक्स्ट बुक में, कंजर्वेटिव फील्ड. कंजर्वेटिव फील्ड में काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी as well as potential energy, both the energy are conserved. ठीक है. And forces of this kind are called conservative force, and the field is saying to be conservative field. Spring force and gravitational force are just example of conservative forces. ओके, ये 11th का था, वो इंट्रोडक्शन हमने देख लिया. नाउ इन 12th, द कूलम फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी चार्जेस. इंपॉर्टेंट वर्ड से स्टेशनरी, स्टेशनरी होने चाहिए. यदि वो मोशन में तो अनदर फोर्स विल बी देयर. लाइक द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑल्सो कंजर्वेटिव फोर्स, यानी कि कूलम फोर्स है वो भी कंजर्वेटिव फोर्स है for a stationary charge. This is not a surprising, since the both have inverse square dependence on distance and differ mainly in the proportionality constant. यानी कि both forces are inverse square in distance. Why? Because the gravitational force, you know, Fg is equal to G m1 m2 divided by r square, यानी कि Fg is inversely proportional to 1 by r square. Same as Coulombian force, Fc is k q1 q2 by r square, and so Fc is inversely proportional to 1 by r square. So both the forces are inverse squares and dependence on distance, and the differ is only constant. Here the constant is z, capital G, and here constant is k, or 1 upon 4 pi epsilon 0. Both is differ. The masses in the gravitational law are replaced by charge in Coulomb's law. Thus, like the potential energy of a mass in gravitational field, we can define electrostatic potential energy of charge in electrostatic field. चलो यहाँ तक पता चल गया सभी स्टूडेंट को? यस सर. हाँ हाँ सर. ओके, तो आज के दिन फर्स्ट दिन था तो हम इतना ही रखते हैं. तो आपको ये सब कुछ जो भी मैंने फर्स्ट करवाया था वो सब शॉर्ट में आपको लिखना है टेक्स्ट बुक में से. 11th की टेक्स्ट बुक में से मैंने जो भी ड्रॉ किया था वगैरह जो कुछ किया था स्प्रिंग में, शॉर्ट में लिखना है, ब्रीफ में, है ना. ये सब एमसीक्यू क्या होता है, ये जो मैंने लिखा है आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो.
इतना आपको लिखना है सिर्फ, ठीक है। થોડું ઉપર કરો ને સર. ऊपर तो चैप्टर का नाम ही लिखा है सिर्फ। અરે સર એટલે કે નીચું કરો એમ. ये अंडरलाइन चली जाएगी फिर, ओके। સર પેલું લખ્યું તો એ તો કરો. वो तो सब कुछ चला गया, કંટ્રોલ ઝેડ કરો સર. इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, कंट्रोल जेड। हाँ हो गया। છે હોય સર બધા લેપટોપમાં. आई डोंट नो, ના હોય ठीक है। સરનામ જેલની તીખ હોય ગઈ હોય સાહેબ તમારે મેકબુક હશે ને સર એટલે. ના ના આ તો કશું છે નહીં, આ પેલું એન્જિન છે, પેલું ખેતરમાં રાખે ને, ખેતરમાં પેલું મશીન ના હોય, મશીન છે। સર તમારે કયું લેપટોપ છે? એ કશું ને, આ તો 1970 નું છે, એપલે પહેલું બનાવ્યું ને। સર એનું મોડલ મળે છે? હા મારા માટે એક રાખ્યું હતું, જૂના મોડેલ માટે જૂના મોડેલ મળે। સર સ્મિત તું ફોન પર હા, વાત બોલ। કર લે આ પીડબ્લ્યુએમ લખીએ કે સીડબ્લ્યુએમ લખ્યા તમે આજે જે કીધું એ લખવાનું પીડબ્લ્યુ માં। તો સીડબ્લ્યુએમ કઈ નહીં લખવાનું ને આજે એનો ફોટો પાડીને તમે મોકલશો જ ને મને? તમે સર ક્લાસ વર્ક પર લખીશું અને એનો ફોટો પાડી મોકલી દઈએ ઓકે આજ તો કંઈક લખેલું દેખાય ઓકે ચાલો। અને ફર્સ્ટ 2 પેજીસ તો બ્લેન્ક છોડવાના, તમને ખબર છે ને? હા સર. અને તમે 11th ના જે મેં તમને કહ્યું એ તમે લખશો એટલે એની ફોર્મ્યુલા લખશો, એની ડાયમેન્શનલ ફોર્મ્યુલા એ પણ એ લખી નાખવાની। 11th માં જે પોટેન્શિયલ એનર્જી આવે, ગ્રેવિટેશનલ પોટેન્શિયલ એનર્જી આવે, એની ડાયમેન્શનલ ફોર્મ્યુલા લખી દેવાની, એનું ઇક્વેશન લખી દેવાનું, યાદ રાખવાનું। એટલે આવતીકાલે જે 12th માં આના ઇક્વેશન આવશે તો તમને સિમિલર લાગે બે, કાલે અજાણ્યું ના લાગે। કાલે હું પૂછીશ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ, ચાલ ભાઈ તું ઇક્વેશન બોલ અને ડાયમેન્શનલ ફોર્મ્યુલા બોલ, બરાબર? ઓકે સર 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 ડાયમેન્શનલ ફોર્મ્યુલા છે ની? ગ્રેવિટેશનલ પોટેન્શિયલ એનર્જી, ઓકે સર. આ બધા લખી નાખો. પછી સ્પ્રિંગ માટે પોટેન્શિયલ એનર્જી। સો લેટ્સ we are stop here our today's lecture. To every student, bye bye, જય સ્વામિનારાયણ। બાય સર Bye, sir. જય સ્વામિનારાયણ જય સ્વામિનારાયણ